Hello everyone, welcome to NEET Biology Zone. So in this video, we will study about questions related to ecology which have been asked in previous years. So let's start with the first question. The term ecosystem was coined by, this question was asked in NEET 2016. The options are A.G. Tansley. The options are A.G. Tansley, B is E. Haeckel, C. E. Warming, and E.P. Odum. So the correct answer is E.G. Tansley. The correct answer is A.G. Tansley. Coming to the next question. Which one of the following is a characteristic feature of cropland ecosystem? Least genetic diversity, the absence of weeds, ecological succession, the absence of soil organism. So the correct answer is least genetic diversity. This is the characteristic feature of cropland ecosystem. Cropland ecosystem क्या होता है? This is the largest anthropogenic system which characterizes less diversity and high productivity. जो cropland ecosystem होता है उसमें सबसे कम genetic diversity होती है और सबसे ज्यादा productivity होती है. Okay. So coming to the next question, which is question number 3. Which one of the following is not a functional unit of ecosystem? Energy flow, decomposition, productivity, and stratification. The correct answer is stratification because stratification functional unit of an ecosystem नहीं होता है. स्ट्रैटिफिकेशन होता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम. सो आप एस से याद कर सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम. और स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है? दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स. जैसे कि हम फॉरेस्ट में देखते हैं बहुत सारे ट्रीज लाइन से लगे रहते हैं हाइट वाइज या वर्टिकल स्ट्रैटा की तरह एक लेयरिंग फॉर्म में खड़े रहते हैं ट्रीज, उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन. तो स्ट्रैटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट तो आप एस से समझ सकते हैं. ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is true of ecosystem? Primary consumers are least dependent upon producers. Primary consumers outnumber producers. Producers are more than primary consumers. The secondary consumers are the largest and most powerful. So the correct answer is producers are more than primary consumers. Option number C. Because producers क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं. और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं. तो हमेशा ग्रीन प्लांट्स ज्यादा ही होंगे ना हर्बीवोर्स से, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर्स से. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन या ओशियन? तो इसका करेक्ट आंसर है ओशियन. ओशियन बायोम और इकोसिस्टम ऑक्यूपाइज मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. ओशियंस क्या होते हैं? 2/3 ऑफ द Earth's surface. This is the most stable ecosystem. Now, decomposers are organisms that elaborate chemical substances causing death of tissues, operate in living body and simplifying organic substances of cells step by step, attack and kill plants as well as animals, operate in relay terms, simplifying step by step the organic constituents of dead body. So, इसका correct answer है option number D. पहली बात तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए. जैसे कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जैसे कि फंगस या बैक्टीरिया जो डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिजम्स पे ऑपरेट करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल बाय सीक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द एनवायरनमेंट. और इस प्रोसेस में क्या होता है? वो लिबरेट करते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इनटू द एनवायरनमेंट. इनको क्या बोलते हैं? और ये भी पता होना चाहिए डिकम्पोजर्स को क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स. ठीक है. और इनका क्या रोल होता है? दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स. तो ये ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स जो डेड बॉडी का है उसको सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है. Next question is identify the correct statement. Detrivores perform fragmentation. The humus is further degraded by some microbes during mineralization. Water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called as leaching. The detritus food chain begins with living organisms. The earthworms break down detritus into smaller particles by a process called as catabolism. Choose the correct answer from given options 2, 3 and 4, 3, 4, 5, 1, 4, 5 या 1, 2, 3.
सो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1, 2 एंड 3। डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि स्मॉलर पार्टिकल्स में हम कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं डेट्रीवोर्स। ये भी सही है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। फिर लीचिंग प्रोसेस के बारे में बताया है, जो भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है दैट गोज डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज लीचिंग। दीस थ्री आर करेक्ट, ए बी एंड सी। ठीक है, मींस 1, 2 एंड 3। The detritus food chain begins with living organisms. This is wrong because detritus food chain जो होता है, जो भी हमने पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में, डिकम्पोजर्स होते हैं, दे फीड ऑलवेज ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। ओके, and the earthworms break down detritus into smaller particles by a process called as catabolism. This is not catabolism. earthworm जो break down करता है detritus को, उसको बोलते हैं fragmentation. So the 1, 2 and 3, that is A, B and C, they are correct and these are wrong. Okay, now coming to the next question. In the equation GPP minus R, the GPP is gross primary productivity. R minus R is equal to NPP, that is net primary productivity. R here is what? Respiratory quotient, respiratory loss, reproductive allocation, photosynthetically active radiation. So the correct answer to this question is respiratory loss. Option number B, respiratory loss क्या होता है? पहले अब तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। जो रेस्पिरेटरी लॉस होता है, द रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जिस रेट से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है पूरा टोटल, ग्रॉस को बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एंड व्हेन वी सब्सट्रैक्ट रेस्पिरेटरी लॉसेस, बहुत सारी चीजें होती हैं जो रेस्पिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा रेस्पिरेटरी लॉस, और जब उसको निकाल देंगे तो बचेगा नेट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जो भी जितना खाना बना माइनस जो रेस्पिरेटरी लॉस हो गया, ये टोटल है, टोटल बायोमास। जीपीबी टोटल बायोमास माइनस रेस्पिरेशन के टाइम पे जो वो है रेस्पिरेटरी लॉस। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जितना खाना अवेलेबल है और अवेलेबल बायोमास फॉर हेट्रोट्रॉफिक कंजम्पशन, उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेनी टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड रिलेटेड टू दिस, एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद रेस्पिरेटरी क्वेश्चन लॉस या एलोकेशन, कुछ भी ऐसा दे देंगे ऑप्शंस, so it is respiratory loss always. Now, detrivores break down detritus into small particles. This process is called as, this is very easy question. This is fragmentation. We have studied in the previous two questions. This fragmentation क्या होता है, जो break down होता है detritus का smaller particles में. This is the initial stage of decomposition process. उसमें fragmentation होता है। फिर डेट्रीवोर्स क्या करते हैं, खाते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को और उसको स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। ओके, नाउ दिस इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 assertion टाइप का क्वेश्चन है। दीज आर asked in एम्स एग्जाम मोस्टली। Decomposition is the process in which the detritus is degraded into simpler substances by microbes. This is correct, we all know decomposition process में क्या होता है। ठीक है, and statement 2, decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. So 10th वाले में क्या है, statement 1 is correct but statement 2 is wrong. So the correct answer is B. Statement 1 is correct but statement 2 incorrect. क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात है कि जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए हमेशा, ऑक्सीजन हमेशा होना चाहिए। The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors. अगर कोई भी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन रेट जो है स्लो होएगा, अगर detritus is rich in lignin and chitin, यहाँ पे क्या लिखा है, फास्टर, सो दिस इज स्लो। ठीक है, detritus में अगर lignin and chitin होगा तो दिस इज स्लो होगा। और फास्ट कब होगा, जब उसमें नाइट्रोजन हो। फास्ट तब होगा जब इसमें नाइट्रोजन हो या फिर कोई भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हो। ठीक है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर्स, ये सब प्रेजेंट होगा तो फास्टर प्रोसेस होगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। डेट्रिटस का प्रोसेस कब स्लो होगा, जब लिग्निन एंड काइटिन होगा। और फास्ट कब होगा, जब उसमें नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे जैसे कि शुगर्स। ठीक है, सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस फॉर दिस टॉपिक।
So please like and subscribe to my channel. Hope you like the video. And please comment if you want more such videos related to NEET 2025. And I will be uploading all the previous year questions topic wise. Thank you so much, guys. Have a great day.